ปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธัมมัสสารติสัตตะเทวมนุษย์สานังบุตโตภะคะวะเตสวะคาโตภะคะวะตะธัมโมสัมเดติโกกาลิโกเอหิปัสสิโกอุปนัยโกปัจจตังเวทิตัมโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะตินังวัตตานิโพริสัยยุกานิอัตตโพริสโภคาลังเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยอาหุเนโยดังกิเนโยอันดาลิกานิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสติการณียมัตตกุศเลนะยันตะสันตังปะดังอภิสัมเมตตาสังโฆอุจุจะสุจุจะสุวัจจะสัมพุทธังอภิมาเนสันโฆสังโฆจะสุภาโรจายะปะปิจุจะสัลลาหุกะโมเตสันติโยจะนิปะโกจายะปะกะโพอุเรสุอนันโนภิกขุนาจาวุตตะธัมมาจาริกินจิเยนะวิญโยปะริอุปวัตติโยสุขิโนวะเอเมโนโหตุสัพเพสัตตะภวันตุสุขิตัสสะเยเกติภะอะพุตตาติตัสสะวะภาวะราวะอะกวะเสสะติยาวะมหันตาวะมัจฉิมะราสกานุกตุลาทิตาวะเอวะติตาเยจตุเรวสันติอภิปุเรภูตาวะสัมภเวสีวะสัพเพสัตตะภวันตุสุขิตัสสะนะปะโรปะระอิโกเบตานาติมัญเยอาทัตตสินังกินจิยาโรสนะอธิกาสัญญาลัยยมัญญะสะดุกะเมตยามาตายะตะนิยังพุทธังอายุสาเยกะพุทธมโนระเทวัมปิสัพพะพุทเตสุมานะสังภาวะอปาริมาณังเมตันตะสัพพะโลกะสิมานะสังภาวะอปาริมาณังโอดังอะโดจะกิริยัญชายะสัมปัตตะอเวราสัพพัตตังติตังจาระอิสินโนวาสายโนวายาวตาสวิกัตตามิโกเอตังสติอภิเทยะบรมเมตะวิหารวิกมะโพธิเตจานุปกัมมสิลวะตาสะเรนะสัมปันโนอาเมสุวินโยเวตังไนกัตตุนัปปะเสยังปุณเรติสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะภวตุส
Bhavantu te bhavatu sabba mangala Rakantu sabba devata sabba dhamma Nubhavena sada soti Bhavantu te bhavatu sabba mangala Rakantu sabba devata sabba sanghano Bhavena sada soti Bhavantu te sadhu sadhu sadhu. Distinguished monks from Bodh Gaya, from India and abroad, distinguished pilgrims who have arrived here, let me extend a warm welcome to all of you on this auspicious occasion of 2567 Buddha Purnima under the shade of this sacred Bodhi tree. Today is a time for great joy and happiness for the Buddhas all over the world as it commemorates the birth, enlightenment and Mahaparinirvana of the Buddha. Buddhas all over pay their regards to the teachings as taught by Buddha and to use the opportunity to reiterate the determination to lead noble lives, to develop their minds, to practice loving kindness and to bring peace and harmony in the country. Let us firmly resolve to follow Buddha's enduring message of peaceful coexistence, non-violence and compassion so that we can build a more harmonious and caring society. From the very beginning, Buddha's path was open to all. Whatever the social status, background, age or gender it be. The Buddha emphasized that everyone has the potential to achieve liberation and enlightenment. Consequently, his teachings are popularly received first in India, where they flourished, and then further appealed as they were taken abroad by monks following trade routes across Asia. Although Buddhism fell into decline in the land of its birth, it has continued to flourish elsewhere up to the present day. The Buddha is said to be the sublimest advent of human history and matchless wisest of the wise. His doctrine for redemption of suffering mankind is known as Buddhism. Buddhism stands for 4 noble truths and 8-fold noble paths. May the Buddha's teachings of universal brotherhood inspire all of us to make steady progress on the path of Shanti, Ahimsa and Maitri. Thank you. Joining us on this 2567 Buddha Purnima celebration, we also have a large number of disciples of Sri Namdhari Singh Sangat Sadguru Dalip Singh Ji, who have assembled here under the sacred Bodhi tree. And I read out the message from their Sadguru Dalip Singh Ji. भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा व उपदेशों से संपूर्ण विश्व को शांति, सामाजिक समरसता का संदेश देकर मानव जाति को कल्याण की मार्ग दिखाया है। समस्त देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। Now, as usual, we have 2 releases, 2 publications of the Bodh Gaya Temple Management Committee. This year we have 2 publications to be received. Usually we release the annual publication Pragya, published by the Bodh Gaya Temple Management Committee, a bilingual journal which started in the year 1970 and it continued for some years and it was discontinued and now restarted in 2001, which is continuing till date. The release of the Pragya Souvenir 2023. Esteemed devotees assembled here, we are here today to commemorate 2,567 years of Buddha Purnima. This is a day of great joy and happiness. I call this day a day of universal celebration. From this day, from the sacred land of Indira, the Prince of Asia began the universal movement, and the world celebrates his teaching with love, compassion, and oneness of mankind. And it is on this day the world regards India as Arya Bhumi,
and the birthplace of all the knowledge and wisdom. India is proud of Buddha, and its people are endowed with profoundly rich teachings. Today I see people from different countries gathered here. It is all because of his teaching. What this shows is the contribution of Buddhists in different societies in our world. I thank with my humble and my gratitude to the great leaders of this country like Anna Karika Govinda, Dr. Bhimsa Ambedkar, and the great apostle of peace of this century, His Holiness the Dalai Lama, who regenerated the Buddhist teaching all over in the world from this very sacred Aribhumi land. Lord Buddha gave 84,000 different teachings, and all these teachings carry the message of peace and compassion. But all these 84,000 teachings of Buddha, we can sum up in 3 lines. Do all the virtuous things, do not commit any non-virtuous thing, control and purify your mind. This is the teaching of Bhagavad Buddha. May we all imbibe and the Buddhist teaching in our heart, and may we all gradually gain the state of Buddhahood. Thank you. His Excellency, the Honorable Governor of Bihar, First Lady, Madam Governor, Honorable Minister of Agriculture, Shri Satjeet Ji, Honorable Former Minister, Shri Prem Kumar Ji, Vice Chancellor, Mughal University, the District State Gaya, SSP Gaya, ADM to PhD, Honorable Monks and Delegates. It gives me an immense pleasure to convey to you all my warm greetings on the sacred occasion of the celebration of 2567th birthday. On this auspicious day, Buddhists all over the world commemorate events of significance of Buddhists of all traditions, the birth, enlightenment, and the Mahaparinirvana of Gautama Buddha. As Buddhism spread from India, it was assimilated into many foreign cultures, and consequently, Vaisakh is celebrated in many different ways all over the world. In India, Vaisakh Purnima Day is also known as Buddha Jayanti Day and has been traditionally accepted as Buddha's birthday. The Buddha lived and taught his teachings, which still continue to remain relevant in the present day. It is so because he invited people to listen, reflect, and critically examine what he had to say in the context of their whole lives. In all its long history, no war has ever been fought in the name of Buddhism. It is this peace and tolerance growing out of a profound but reasonable philosophy that makes the Buddha message timeless and always vitally relevant. Like all major religious traditions, Buddhism deals with basic human problems. But what distinguishes the Buddhist way of thinking is its emphasis on the empowerment of human intelligence and dealing with disturbing emotions. The key is inner peace. If we have inner peace, we can face difficulties with calm and easy. The teachings of love, kindness, and tolerance, the conduct of non-violence, and especially the Buddhist rule of interdependence are a source of inner peace. Lord Buddha's timeless message of right conduct, universal love, compassion, and tolerance continue to be the way where it is unique in never time. On this happy occasion, let us make ourselves to get the practice of Buddha so that we can build a peaceful and human society. Thank you, sir. I will now invite our guest of honor, Sri Kumar Sarojji, the Honorable Minister for Agriculture, Government of Bihar. ज्ञान एवं मोक्ष की पावन धरती पर आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उपस्थित बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आनंद जी और मगध के प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त बड़े जी, जिलाधिकारी, एसएसपी, मैनेजमेंट कमेटी के सभी अधिकारीगण, मेंबर्सगण और देश विदेश
आए हुए यहाँ के हमारे गाँव और बोध गया के सभी जनप्रतिनिधिगण, बुद्ध पूर्णिमा का संबंध बुद्ध के साथ केवल जन्म भर का नहीं है, बल्कि इसे पूर्णिमा तिथि को वर्षों वन में भटकने व कठोर तपस्या के बाद इसी बोध गया की पावन धरती पर बुद्ध को सत्य का ज्ञान हुआ था। इसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरी दुनिया को नई रोशनी पैदा की थी और बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में उसका महापरिनिर्वाण हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म सत्य का ज्ञान महापरिनिर्वाण एक ही दिन यानी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ। इसलिए आज सोच सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण दिन है। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बुद्ध के आदर्श एवं धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आज बौद्ध धर्म के मानने वाले केवल 180 करोड़ से अधिक लोग हैं। यह त्योहार भारत, चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया सहित विश्व के कई देश में को मानते हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य था अहिंसा, सत्य, परमाचार एवं मनुष्य। हम भगवान बुद्ध की पावन धरती से अपनी ओर से और सरकार की ओर से, बिहार सरकार की ओर से हम ही देश को एक संदेश देना चाहते हैं और भगवान बुद्ध की पवित्र धरती से हम भगवान बुद्ध को नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस देश में शांति, अमन, चैन, भाईचारा हमेशा बना रहे और जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं और भगवान बुद्ध का जो संदेश है ये पूरे विश्व में विश्व शांति के लिए प्रेरित करें। यही हम कहकर के अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सर्वप्रथम आज के इस पावन अवसर पर बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाख की पूर्णिमा भी कहा जाता है, और ऐसे शुभ अवसर पर इस पवन पावन ऐसी यहाँ की धरती से सभी देशवासियों को मैं बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ। It is a great pleasure that many of the followers of this particular thought have come from the different parts of the world. My greetings to all of them who have come here and who have not been able to present themselves physically. बुद्ध पूर्णिमा की उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस शुभ अवसर पर क्या हमारे साथ उपस्थित हैं परम श्रद्धेय भिक्खु महासंघ, हमारे अपने यहाँ माननीय कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत जी, यहाँ के विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार जी, मगध प्रमंडल के आयुक्त मयंक वरवड़े जी, गया जिलाधिकारी तथा बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष त्यागराजन, यहाँ के सदस्य सचिव एम दोरजी, सभी सदस्य, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, देश विदेश से आए हुए सभी प्रतिनिधि, इस देश
और इस बौद्ध मत से अपनी आस्था रखने वाले सभी भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, माता, भगिनी और सज्जन, वास्तव में यह बहुत ही परम पवित्र ऐसा अवसर है। जब मैं विद्यार्थी था, स्कूलों में पढ़ता था, तो स्कूल में हमको एक पाठ होता था और उस पाठ के ऊपर हम बोधि वृक्ष का चित्र देखते थे और बोध गया कहाँ है वो भी हम वहां नक्शे पर देखते थे। प्रत्यक्ष रूप से कभी उसका दर्शन नहीं हुआ था, परंतु यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ आकर इस परम पवित्र धरती पर यहाँ आकर और आपके सानिध्य में बैठकर इस बोधि वृक्ष का मैं दर्शन कर पाया और मुझे बहुत ही धन्यता प्राप्त हो गई। मुझे लगता है आप भी सभी यही अनुभव करते होंगे, क्योंकि परम पूजनीय भगवान बुद्ध ने हमको जो संदेश दिया है वो संदेश उन्होंने अपने कर्तृत्व से दिया है। उसका अनुपालन करना हम सबका कर्तव्य बनता है। ऐसा विचार करके हम यहाँ आए हैं। जीवन में आकर कभी भी बोध गया का यहाँ का दर्शन करना, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उस क्षेत्र का दर्शन तो हम कर सके। हम इतने तो भाग्यवान नहीं होते कि वहां जाकर हमको ज्ञान होगा, परंतु यहाँ आकर हम इतने उनका दर्शन करके उनसे कुछ ना कुछ पाने का प्रयास हम करेंगे, ऐसी भावना हम सबके मन में होती है। और इसलिए आपके मन में जो भाव है वही मेरे मन में भाव है। और आज मैं यहाँ मेरी पत्नी सहित यहाँ आकर इस परम पावन धरती का, इस परम पावन ऐसे इस वृक्ष का दर्शन कर पाता हूँ, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। ऐसे देखा जाए तो इस देश की भारतीय संस्कृति का ये इसकी विशेषता रही है कि इस धरती से, इस धूल से जो भी तत्व ज्ञान बाहर आ गया वो पूरे विश्व कल्याण का ही था। यहाँ से जो भी मत, यहाँ से जो भी विचार, यहाँ से जो भी विचारधारा बाहर आ गई इस धरती से, वो किसी पर आक्रमण करने वाली कभी भी नहीं थी। शस्त्र लेकर हम कहाँ जाकर वहां आक्रमण करेंगे, ऐसा विचार यहाँ के मत ने कभी भी नहीं दिया। भगवान बुद्ध जैसे यहाँ के अपने संदेश के प्रवाहक, उनका भी मानना है कि उन्होंने कुछ नया हम सबको दिया, ऐसा नहीं है। उनकी अगर जीवनी हम पढ़ेंगे, चरित्र पढ़ेंगे और उनके जो संदेश के प्रवचन के बारे में अगर पढ़ेंगे या अनेक जातक कथाओं को अगर हम पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि उन्होंने खुद कहा है, स्वयं कहा है कि हजारों वर्षों से जो यहाँ एक प्रवाह आता है विचार का, उसी को ही मैं यहाँ आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमको आश्वस्त किया है, जब यहाँ धर्म पर ग्लानि आएगी, हम भटक जाएंगे रास्ते से, तब मैं यहाँ स्वयं आकर आप सबका मार्गदर्शन करूंगा। और हमारी संस्कृति में भगवान बुद्ध को हम अपना भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। जब भगवत गीता में कहा गया कि मैं आऊंगा वापस,
और यहाँ के धर्म पर जब ग्लानि होते, धर्म का मतलब हमारी पूजा अर्चा नहीं है। धर्म का मतलब हम घर में बैठकर जिस मूर्ति की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कितनी बार घंटा बजाते हैं, कितनी बार आरती उतारते हैं, ये नहीं है धर्म का मतलब। धर्म का मतलब है सही दिशा। धर्म का अर्थ है योग्य प्रकार का विचार, जिसे अंग्रेजी में डूज एंड डोंट्स ऐसे कहते हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको हमारे यहाँ धर्म कहा गया है। और जब इन विचारों से हमारे यहाँ के लोग भटक जाते हैं, उसको हम धर्म भ्रष्ट कहते हैं। परंतु ऐसे समय मैं स्वयं यहाँ अवतारित होकर पूरे समाज को, विश्व को उनके कल्याणकारी मार्ग पर जाने का मार्गदर्शन करूंगा, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमको आश्वस्त किया है। और इसी के स्वरूप में भगवान बुद्ध यहाँ अवतरित हुए। उन्होंने जब देखा कि इस प्रजा में, लोगों में कुछ भटके हुए लोग हैं और हमारी मूल भावना को लेकर भटक रहे हैं, तो उनको मार्गदर्शन करने की आवश्यकता थी। और ऐसे समय भगवान बुद्ध अवतरित हुए और उन्होंने पूरे समाज को आश्वस्त किया। उनके विचार है, वो विचार किसी एक विशिष्ट जाति के नहीं है, विशिष्ट पथ के नहीं है, पंथ के नहीं है, या किसी एक सेक्शन के नहीं है। भगवान बुद्ध के विचार, उनकी कृति, उनका आचरण तो पूरे विश्व और मानव की संपत्ति है, वो किसी विशिष्ट लोगों की संपत्ति नहीं है। और भारत के लोगों ने भी उस पर अपना हमारा अधिकार है ऐसा कभी भी नहीं कहा। उनके विचार पूरे विश्व के और मानव के कल्याण के लिए है। इसलिए भगवान बुद्ध के विचारों पर हम उनको जकड़कर यहाँ नहीं रखेंगे। जापान हो, अन्य पूर्वी देश हो, एक सभी यहाँ के अपने दक्षिण में श्रीलंका देख लीजिए, वहां सब अपना यह विचार जब जब वहां गया, तब उन सब लोगों को लगा कि हमको मोक्ष प्राप्ति हो रही है। जीवन का लक्ष्य ही मोक्ष होता है, और वो लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति पाने के लिए भगवान बुद्ध ने जो हमको रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन किया है, वो आज भी आवश्यक है। जैसे कि हमारे मंत्री जी ने उनके भाषण के अंतिम चरण में कहा कि वो एक ही यहाँ प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस देश में सद्भावना हो, सत्य अहिंसा का पुनः एक बार यहाँ लोगों का प्रादुर्भाव हो। भगवान बुद्ध के चरणों, उन्होंने प्रदर्शित किए हुए मार्ग पर चलने के लिए हमको प्रयास करने की आवश्यकता है। हम सब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे तो कुछ न कुछ हम पा सकेंगे। और हजारों वर्षों से अपनी जो परंपरा आई है, इस परंपरा के अनुरूप इस प्रदेश में, इस देश में सभी लोग एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखते हैं, तो हम सच्ची दिल से, सच्चे मन से उनका हम श्रद्धा से स्मरण करते हैं, ऐसा होगा। मुझे लगता है आज के इस परम पावन ऐसे दिवस पर हम यहाँ से जाते समय यही विचार लेकर जाएंगे। मैं मेरा एक स्मरण में बताता हूँ। मैं हिमाचल में था, यहाँ आने से पहले तो मुझे धर्मशाला जाने का अवसर मिला और धर्मशाला में जाकर परम पावन दलाई लामा के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। केवल दर्शन नहीं, उनके सानिध्य में बैठने का अवसर मिला। परम पावन, परम पूजनीय श्रद्धेय दलाई लामा जी ने मुझे साथ में बिठाया और उन्होंने एक बात कही, तो पूरे विश्व के लिए चाहिए
उन्होंने कहा ये दो शब्द बहुत ही जरूरी है, और वो दो शब्द उनके थे करुणा और अहिंसा। हमारे सबके मन में करुणा होने की आवश्यकता है। परम पूज्य दलाई लामा ने हमको संदेश दिया है। श्रद्धेय दलाई लामा हमको बताते हैं कि करुणा और अहिंसा को अपनाओ। उनका मार्गदर्शन हमारे लिए परम कर्तव्य जैसा है। अगर दलाई लामा हमको यह संदेश देते हैं तो आज के इस परम पावन अवसर पर और इस धरती से यहाँ से जाते समय हम संकल्प करके जाएंगे, हम निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। यहाँ आकर अगर हम संकल्प करते हैं इतने ऐसे परम पावन ऐसे धरती पर बोधि वृक्ष के सानिध्य में, तो हम इसमें सफल भी हो जाएंगे और संकल्प करेंगे कि एक दूसरे के प्रति हमारे मन में करुणा होगी, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में सद्भावना होगी, हमारे मन में अहिंसा का भाव होगा, कहीं भी अहिंसा नहीं आएगी। इस संकल्प को यहाँ से दोहराते हुए हम जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यहाँ से अगर हम संकल्प करते हैं, सच्चे मन से अगर संकल्प करते हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, उनकी करुणा से हम इसमें सफल हो जाएंगे। पूरा देश इस विश्व को कल्याणकारी मार्ग देने के लिए सफल होगा। यही भाव हम सबके मन में जो है वो मैंने यहाँ खड़ा होकर व्यक्त किया है। मुझे लगता है इसी को आज के इस परम पावन दिवस पर हम लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।